Hello viewers, today we will cover the topic abscisic acid, the inhibitory plant growth regulator which inhibit the growth of the plants. In 1940, the scientists started searching the hormones that inhibit the growth and development of the plant, जो कि हेम्बर्ग ने जिसको नाम दिया था डॉर्मिन। 1940s में इसके बारे में सर्च हुई कि कुछ ऐसे प्लांट हार्मोन हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। In early 1960s, Philip Weber confirmed that application of the dormin to a bud would induce dormancy. After that, F.T. Endicott discovered that this substance stimulate abscission of the cotton fruit. जो cotton fruit है उसके abscission के लिए responsible है. That was discovered by the F.T. Endicott. So he named this hormone abscission 2. But after the research, it was showed that it was the ethylene, not the abscissin, that controlled the abscission of that fruit. In 1964, it became evident that these three groups had discovered the plant hormone. तीन जो ग्रुप है इन्होंने इस प्लांट हार्मोन को डिस्कवर किया जिसको लेटर ऑन नाम दिया गया था एब्सिसिक एसिड. Structure of abscisic acid is 15 carbon cis-quaterpene compound that is composed of 3 isoprene residue. First is cyclohexane ring with the keto group, cyclohexane ring with the keto group, one hydroxyl group and a side chain with the terminal carboxyl group. तो इसमें क्या है, ये तीन रेजिड्यूज प्रेजेंट है आइसोप्रीन रिंग के. एक ये जो साइक्लोहेक्सोन रिंग प्रेजेंट होगी जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक जो ये साइड चेन है जिसका जो टर्मिनल एंड है उस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो मेनली ये थ्री रेजिड्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं. इट इज प्रेजेंट इन बोथ सिस एंड ट्रांसफॉर्म. Abscisic acid are synthesized in the chloroplast or the other plastids by the malonic acid pathway. Cis form of ABA is active form that is inactivated by the oxidation or AB glucosides. जो glucosidation होता है abscisic acid का, that will convert it into the inactive form. जैसे abscisic acid है, oxidation पे इसका phasic acid and ultimately it will convert it into 4-dihydrophasic acid, that is a inactive form of the ABA. It is also inactivated by conjugation with the glucosides, that is ABA beta D glucoesters. So these are the inactive form of the ABA that are inactivated by the glucosidation or oxidation. The orientation of this carboxylic group at carbon 2 determines the cis and trans form. कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस रिंग पे ये बताएगा कि ये सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है. अगर ये ओरिएंटेशन है तो दैट इज नेचुरली अकरिंग सिस ABA, एंड इफ दिस इज प्रेजेंट इन दिस फॉर्म दैट इज the trans form of the ABA, that is biologically inactive and cis form is biologically active. और mostly जो naturally occurring ABAs हैं that are present in the cis form mostly. Sites of ABA. ABA is synthesized in almost all the cells mostly that contain the chloroplast or the plastid. और mostly क्या है, plastid normally most of the cells में present होते हैं. तो but जिसकी predominantly site है that is green leaves, because chloroplasts are abundantly present in the green leaves. So most predominantly site of synthesis of abscisic acid is the mature green leaves. Abscisic acid also has been detected in all the organ and living tissue like root caps to apical buds. Phloem sap है, xylem sap है, nectars है. तो every part में इसको डिस्कवर किया गया है, डिटेक्ट किया गया है. ट्रांसपोर्ट ऑफ ABA का जो ट्रांसपोर्ट है दैट डिपेंड कि वो आप एक्सटर्नली उसको अप्लाई कर रहे हो या फिर जो प्लांट है उसी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है. अगर एक्सटर्नली हम उसको अप्लाई करते हैं ABA को, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शंस. और जो नेचुरली सिंथेसाइज ABA है उसका जो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज एट ए वेरी स्लो रेट. जैसे ABA रूट कैप में सिंथेसाइज होगा तो ट्रांसपोर्ट होगा सेंट्रल वस्कुलर सिस्टम में. और ट्रांसपोर्ट ऑफ ABA इज मोस्टली इन इट्स फ्री फॉर्म. जो एक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होती है इसकी फ्री फॉर्म में होगा. इसके जो ऑक्साइड्स हैं या फिर जो ग्लूकोसाइड्स हैं उसकी फॉर्म में कम होता है इसका ट्रांसपोर्ट. और अगर कंजुगेटेड फॉर्म में होगा ट्रांसपोर्ट तो वो होता है बीटा डी ग्लूकोसाइल एस्टर की फॉर्म में. बट मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज इन इट्स फ्री फॉर्म. रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जो ABA का, ABA की एक जगह जो सिंथेसाइज हुआ वहां से अगर रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगा दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द pH कि वो किस फॉर्म में
उसका ट्रांसपोर्ट होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो वहां के पीएच पे डिपेंड करेगा। अगर तो लो पीएच है, वहां पे लो पीएच है तो वो प्रोटोनेटेड और अनडिसोशिएटेड ABAH की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, प्रोटोनेटेड या अनडिसोशिएटेड फॉर्म में। और अगर पीएच हाई है, दैट इन दैट केस ABA इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसोशिएटेड फॉर्म। सो दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ APA टोटली डिपेंडेंट अपॉन द पीएच ऑफ दैट टिश्यू और सेल। Now mechanism of action of the ABA. First, ABA is bind to the receptor and forms the reactive oxygen species in the cell. That reactive oxygen species stimulate the कैल्शियम इनफ्लक्स, जो कैल्शियम आयन है उनके इनफ्लक्स कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से जो आउटसाइड में कैल्शियम आयन्स है वो इनसाइड जो गार्ड सेल्स है उसके अंदर एंटर करेंगे। जो इंट्रासेलुलर, उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है कैल्शियम आयन्स, उनका जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगी। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई होगी तो जब K+ आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है इसको ये स्टॉप कर देगा, और K+ आयन का जो इफ्लक्स होगा उसको एनहांस कर देगा, जिसकी वजह से क्या है, जो मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होगा ये हाई की वजह से, और ये एक्टिवेट कर देगा इफ्लक्स को, और उसकी वजह से क्या है, जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाएगी, और सेल जो है, सेल जो वाटर है वो भी बाहर निकल जाएगा, और सेल का जो टर्गर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे। Now the physiological roles of the ABA. There are various physiological roles of the ABA. Some of them are drought tolerance or maybe abiotic tolerance, promote dormancy like seed dormancy or bud dormancy, close stomata, leaf senescence, promote desiccation tolerance in the embryo and inhibit precocious germination or the vivipary. First is drought tolerance. एब्सिसिक एसिड इज द की इंटरनल सिग्नल दैट फैसिलिटेट द ड्रॉट टॉलरेंस। क्यों? क्योंकि ये स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को रेगुलेट करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है। और ड्रॉट टॉलरेंस में क्या होगा कि जो प्लांट है उससे वाटर का लॉस मिनिमम हो, ये डिटरमाइन करेगा एब्सिसिक एसिड। क्योंकि जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी तो ABA लीव्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और जो स्टोमेटा है उनको रैपिडली क्लोज कर देगा। अगर स्टोमेटा क्लोज हो गई तो जो ट्रांसपिरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा और प्लांट से जो वाटर का लॉस है वो रुक जाएगा। तो ABA काजेज द ओपनिंग, ओपनिंग वो कैसे करेगा, जो कि हमने मैकेनिज्म में स्टडी किया था कि जो K+ आयन है उसके एफ्लक्स को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से इस आयन का लॉस हो जाएगा, और उसकी वजह से ऑस्मोटिक लॉस की वजह से जो वाटर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और causing the less turgor pressure in the guard cell and which is responsible for the closure of the stomata. तो इस टाइप से स्टोमेटा को क्लोज करके ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करके ABA ड्रॉट टॉलरेंस में हेल्प करता है प्लांट की। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग टॉलरेंस। जो एलिवेटेड लेवल्स ऑफ द ABA is also associated with increased freezing tolerance in the plant. ABA appear to mediate the plant response to environmental stress such as freezing by regulating various gene expression. जो उनके लिए particular genes है उनको activate करते हैं। Certain genes are switched on by the ABA while others are switched off during this freezing tolerance in the plant. Third is the close the stomata, जो कि basic mechanism है tolerance के लिए, abiotic stress के लिए। जो ABA की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स हैं, ABA प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर, उनसे ABA बाइंड करेगा, और जो ऐसे म्यूटेंट होंगे जिनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे या फिर ABA सिंथेसाइज नहीं होगा तो उस प्लांट में क्या होगा, परमानेंट विल्टिंग हो जाएगी। क्यों? स्टोमेटा तो क्लोज नहीं होंगे, ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूअसली होगा और वाटर उसको मिलेगा नहीं, तो वो क्या है, प्लांट विल्ट हो जाएंगे या परमानेंट विल्टिंग बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर ये ABA म्यूटेंट होंगे तो उनको विल्टी म्यूटेंट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्टोमेटा है वो उनके क्लोज नहीं हो पाते और कंटिन्यूअसली ट्रांसपिरेशन होगा, कंटिन्यूअसली लॉस ऑफ वाटर होगा, जिसकी वजह से उनमें परमानेंट विल्टिंग हो जाएगी। तो जो ABA के म्यूटेंट्स हैं उनको हम विल्टी म्यूटेंट्स भी नाम दिया गया है। स्टोमेटल क्लोजिंग कैन ऑल्सो बी काज्ड बाय द ABA सिंथेसाइज इन रूट्स एंड एक्सपोर्टेड टू द सूट। कि जरूरी नहीं है कि लीव्स में ही सिंथेसाइज हो रहा है तभी वो उसको स्टोमेटा को क्लोज करेगा, रूट के अंदर भी सिंथेसाइज हो रहा है तो वो शूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा लीव्स तक और वो भी स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प कर सकता है ड्यूरिंग द ड्रॉट टॉलरेंस। सो ABA ऑल्सो हेल्प्स इन क्लोजिंग द स्टोमेटा। सीड डोरमेंसी, मेजर रोल
जो है ABA का, दैट इज ऑल्सो इन द सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी क्या है, जो भी ग्रोथ ऑफ सीड अगर रुक जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो उनको बोलते हैं डॉर्मेंट सीड्स। प्राइमरी डॉर्मेंसी है या सेकेंडरी डॉर्मेंसी है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द रेशियो ऑफ ABA टू GA। क्यों, जो GA है जिबरेलिक एसिड है वो तो डॉर्मेंसी को रिमूव करता है और ABA डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। तो जो जर्मिनेशन होगा सीड का, जो डॉर्मेंसी है वो डिपेंड किस पे करेगी कि प्लांट के अंदर ABA और GA का रेशियो क्या है, ABA टू GA का रेशियो क्या है। क्योंकि एम्ब्रियो डॉर्मेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर्स, उसके अंदर कुछ इनिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ABA है तो भी एम्ब्रियो डॉर्मेंसी हो सकती है। और ऑल्सो एब्सेंस इन द ग्रोथ प्रमोटर्स, या फिर GA उसमें प्रेजेंट ना हो तब भी एम्ब्रियो डॉर्मेंसी हो सकती है। तो टोटली जो डॉर्मेंसी है, लॉस ऑफ डॉर्मेंसी किससे एसोसिएटेड होगा, ए शार्प ड्रॉप इन रेशियो ऑफ ABA टू GA, कि जो ABA टू GA का रेशियो अगर डिक्रीज हो गया तो डॉर्मेंसी रिमूव हो जाएगी, अगर ABA टू GA का रेशियो इंक्रीज हो गया तो जो डॉर्मेंसी है वो प्रमोट हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ABA टू GA रेशियो। इंड्यूस डोरमेंसी ऑफ द बर्ड्स, जो डोरमेंट बर्ड्स हैं, डोरमेंट बर्ड्स में क्या होगा, जो इंटरनोड है शॉर्टन होंगे और उसके ऊपर उन इंटरनोड्स पे क्या है, स्पेशली मॉडिफाइड लीव्स होंगी, या फिर जिनको हम बर्ड स्केल्स बोलते हैं, इस टाइप की बिल्कुल छोटी छोटी सी लीव्स प्रेजेंट होंगी, दैट आर द डोरमेंट बर्ड्स। मोस्ट ऑफ ट्रीज में क्या है, बर्ड्स जो लेटर समर जो सीजन है उस टाइम पे बनती हैं, फिर वो डोरमेंट हो जाती है, ग्रो नहीं करती लीव्स में, या जो और वो क्या है, जो पूरा विंटर पीरियड होता है उसमें डोरमेंट ही रहती हैं। तो इसके ड्यूरिंग किस वजह से वो डोरमेंट हो जाती है, उस टाइम पे जो लेवल ऑफ ABA का है वो हाई हो जाता है वहां पे, जिसकी वजह से वो स्केली लीव्स या फिर जो मॉडिफाइड लीव्स है उसी में रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हर्बेसियस प्लांट्स हैं, पोटैटो, उनके अंदर भी जो ये इस टाइप के बर्ड्स होती हैं वो डोरमेंट होते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम आप देखोगे उस टाइम पे ही जर्मिनेट होना शुरू हो जाती हैं। तो जर्मिनेशन कब होगा इनका, जब उसमें ABA का लेवल कम हो जाता है। Next is promote desiccation tolerance in the embryo. It is also an important function that is due to the Lia protein synthesized by the ABA. जो लिया प्रोटीन है वो डेसिकेशन टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं एम्ब्रियो में, और वो किसकी वजह से होते हैं सिंथेसाइज, ABA की वजह से। तो लेवल ऑफ ABA इन सीड्स पीक ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस की ड्यूरिंग उसमें हाई लेवल प्रेजेंट होता है ABA का सीड्स में। ड्यूरिंग द मिड टू लेट स्टेजेस ऑफ सीड डेवलपमेंट, जब उसकी जो मिडिल स्टेज होती है सीड डेवलपमेंट की और उसकी लास्ट स्टेज तक स्पेसिफिक mRNA एक्यूमुलेट होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, और ये mRNA स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन बनाते हैं जिनको बोलते हैं लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन, या फेमसली नेम्ड एज लिया प्रोटीन्स। एंड सिंथेसिस ऑफ मैनी लिया प्रोटीन इंड्यूस्ड बाय द ABA ट्रीटमेंट। जैसे ही हमने इसको देखा डिफरेंट उसमें कि जैसे ABA का ट्रीटमेंट, अगर ABA उसको ज़्यादा दिया जाता है, ABA का ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो लिया प्रोटीन की सिंथेसिस भी अमाउंट भी इंक्रीज हो जाती है। तो जो लिया प्रोटीन की सिंथेसिस के थ्रू जो ABA है वो डेसिकेशन टॉलरेंस भी प्रमोट करता है एम्ब्रियो में। इनहिबिट्स प्रीकोशियस जर्मिनेशन एंड विविपेरी। प्रीकोशियस जर्मिनेशन में क्या है कि जब सीड की डेवलपमेंट हो रही है, सीड जो फ्रूट्स के अंदर है उसकी फुली डेवलपमेंट मैच्योरेशन होने से पहले ही वो सीड क्या है, एम्ब्रियो क्या है, जर्मिनेट करना शुरू कर देता है ऑन द प्लांट या विद इन द फ्रूट, दैट इज प्रीकोशियस जर्मिनेशन और द विविपेरी। इसको एक एक्सपेरिमेंट से भी शो किया गया है कि डिफरेंट इमेच्योर एम्ब्रियो को रिमूव किया गया उनके सीड से और उसको एक कल्चर मीडियम में रखा गया प्रीकॉशियसली जर्मिनेट करने के लिए। वो जर्मिनेट करना शुरू कर गए, बट जैसे ही उसके अंदर ABA डाला गया उस कल्चर मीडियम में, तो उसका जर्मिनेशन, प्रीकॉशियस जो जर्मिनेशन है वो इनहिबिट हो गया। तो वो किसकी वजह से है, जो एंडोजीनस, ये जो किसकी वजह से होगा, जो प्रीकॉशियस जर्मिनेशन नेचुरली इनहिबिट होगा, वो होगा लेवल ऑफ एंडोजीनस ABA इज हाई ड्यूरिंग मिड और लेट सीड डेवलपमेंट। जो मिड से लेके लेट सीड डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे ABA का कंसंट्रेशन हाई होता है प्लांट्स में, और जिसकी वजह से जो ABA है वो नेचुरल टाइप से उसके जर्मिनेशन को स्टॉप करेगा, और इसी वजह से ये विविपेरी या फिर उसको स्टॉप करता है कि जो प्लांट प्री हार्वेस्ट जो स्प्राउटिंग होती है सीड्स में वो नहीं होगी या विविपेरी नहीं होगी। लीफ सेनेसेंस, जो कि डेट्रेटिव प्रोसेस है या फिर हम कहें कि नेसेसरी भी है प्लांट्स के लिए, दैट इज नेचुरली टर्मिनेट देयर फंक्शनल लाइफ इज रेफर्ड एज सेनेसेंस। तो जो एक्सप्रेशन है सेनेसेंस एसोसिएटेड जीन का, जैसे ही हम
जो एब्सिसिक एसिड की एप्लीकेशन इंक्रीज करते हैं तो सेनिसेंस एसोसिएटेड जो जीन है उनका एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल वेरियस जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उनके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे प्रोटीएज है, राइबोन्यूक्लिएज है, लाइपेजेज है, तो इन जीन का एक्सप्रेशन क्या है उस टाइम पे इंक्रीज। So ABA is involved in senescence of the leaves and not in the abscission of the leaves. Thanks.